Very good evening. This is Kalp Shah from Kalp Shah CA classes. Today we are going to see Ind AS 113, that is fair value measurement. That is also IFRS 113 fair value measurement. Before that, I would like to introduce myself Kalp Shah from Kalp Shah CA classes and Agarwal Consultants. We teach for CA all levels and CS all levels, that is CA final, inter, CA foundations, CS professional, CS executive, CS foundation. We are also running a consultancy which provides other than attestation services of CA or CS or ICWA. That is, we are providing following services: company law related services, then GST related services, income tax related services, all services apart from auditing, which is specialized services of CA. We are a private limited or private firm, so we can provide all the compliance related services: return filing, guidance, legal guidance, foreign exchange management related guidance, XBRL filing related services, merchant exporting, IBBI related guidance, export import, finding buyer finding seller related guidance, and all the nitty gritties of corporate world. So this is our brief introduction. Now coming to the point, index 113 fair value measurement. This is in MCA, that is Ministry of Corporate Affairs website. There is 46 page standard, 46 page fair value measurement, 113 Indian accounting standard, 113 fair value measurement. Before that, we would like to study some basic terms which are given in this standard only. These are as follows: some basic terms. We will start the definition, then we will understand one by one definition, then we will go into the standard. First definition is of active market. What is an active market? An active market is a market in which transaction for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume. Here please underline the word sufficient frequency and sufficient volume to provide pricing information on an ongoing basis. This is normally, say for example, we will understand this standard by taking the example of a fruit market of your city. I am from Ahmedabad, and in Ahmedabad the main fruit market is either Kalupur fruit market or sabji market, fruit market and sabji market. There is Naroda fruit market and Kalupur sabji market, and in the same manner there is Jamalpur is the area, Jamalpur sabji market, sabji mandi. So we will understand this concept by example of fruit market and sabji market. Okay, so there will be many words like principal market, most advantageous market. These are the terms coming in the standard. So first is the active market. Active market is the market where is sufficient frequency and volume, sufficient frequency of the goods being traded. फिर दूसरा है कॉस्ट अप्रोच. कॉस्ट अप्रोच मीन्स आपको किसी चीज़ की कॉस्ट क्या लगी. से फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई भी एसेट है, फॉर एग्जांपल फ्रीज है, एसी है. अभी मैं लॉकडाउन में बैठा हूँ तो कॉर्पोरेट एसेट्स मेरे मन में नहीं आ रही, घर की एसेट्स बात आ रही है. टेबल है, कुर्सी, अगर उसको वो मैं फेंक दूँ, तोड़ दूँ, तो उसको मुझे दूसरा फ्रीज लाना पड़ेगा. तो दूसरा फ्रीज लाने के लिए मुझे क्या कॉस्ट लगी, उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो उसे कहते हैं कॉस्ट अप्रोच. अ वैल्यूएशन टेक्निक दैट रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट दैट वुड बी रिक्वायर्ड currently to replace the service capacity of an asset, often referred to as current replacement cost. तो उसे कहेंगे कॉस्ट अप्रोच. कोई भी असेट का आपको वैल्यूएशन कॉस्ट अप्रोच से भी कर सकते हो, मार्केट अप्रोच से भी कर सकते हो, इनकम अप्रोच से भी कर सकते हो. वो हम डीप में देखेंगे. लेकिन अभी हमने क्या देखा, कॉस्ट अप्रोच का मतलब उसी असेट को रिप्लेस करने की कॉस्ट की वैल्यू को कॉस्ट अप्रोच कहेंगे. से फॉर एग्जांपल मेरा कैलकुलेटर टूट गया, तो कैलकुलेटर का अगर मुझे रिप्लेस करना है तो कितनी कॉस्ट होगी, उसे कहेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट. फिर है एंट्री प्राइस. हाँ, एंट्री प्राइस होती है कोई असेट खरीदने की या कोई लायबिलिटी अज्यूम करने की प्राइस. ये आपको खास समझनी है, एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा. यहाँ पे आप पहले पढ़ सकते हो. एंट्री प्राइस इज द प्राइस पे टू अक्वायर एन एसेट और रिसीव, और द प्राइस रिसीव टू अज्यूम अ लायबिलिटी इन एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन. और एग्जिट प्राइस इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी. तो मैं आपको इसको, ये चारों चीज़ को एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो दोस्त हैं, एक है जेठालाल और दूसरा है मिस्टर भीड़े.
जेठालाल और मिस्टर भिड़े दो दोस्त हैं। थोड़ा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रहा है, लिखने नहीं दे रहा है। हाँ जी, तो जेठालाल और भिड़े जी, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। देखो ये जेठालाल जी है, उनकी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, तो वो उनके पास असेट है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी, टीवी। और ये भिड़े जी है, वो अपने जेठालाल जी एक टीवी या फ्रिज भिड़े जी को बेचते हैं, ठीक है। तो ये एक असेट हो गई। तो जेठालाल जी ने क्या कहा, असेट से मुक्ति पाई, असेट से मुक्ति पाई, मुक्ति यानी कि वो असेट्स अब उनकी नहीं रही। तो उनके लिए क्या हुआ, असेट जिस प्राइस पे बिकी वो क्या प्राइस हुई, एग्जिट प्राइस। और जिस प्राइस, इसी प्राइस से फॉर एग्जांपल उन्होंने फ्रिज खरीदा 18,000 का, जो है वर्लपूल का फ्रिज, 18,000 का वर्लपूल का फ्रिज जेठालाल जी ने सेल किया मिस्टर भिड़े जी को। तो उनके लिए क्या हुई, एग्जिट प्राइस हुई। जो टू सेल, जो सेल करने की वैल्यू होती है असेट की, उसे कहते हैं एग्जिट प्राइस। और मिस्टर भिड़े के लिए क्या हुआ, एंट्री प्राइस। तो इंड एस 113 क्या कहता है, आपको किसी भी असेट की आप वैल्यू ढूंढ रहे हो, फेयर वैल्यू, तब आपको फेयर वैल्यू ढूंढने के लिए कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, एग्जिट प्राइस, ठीक है। अगर आप इस असेट को आज बेच देंगे तो उसका क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। हालांकि जेठालाल जी के लिए ये तो इन्वेंट्री है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाया कि कोई असेट आप बेच रहे हो तो उसकी एग्जिट प्राइस क्या रहेगी। इन्वेंट्री पे इसका, इस इंड एस का बहुत ही कम एप्लीकेबिलिटी है या फिर नहीं है, लेकिन आपको क्या समझना है कि आपको कोई भी असेट की एग्जिट प्राइस देखनी है। इसी तरह लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी थी जो जेठालाल जी के पास थी, और यहाँ पे भिड़े जी है। जेठालाल जी को से फॉर एग्जांपल 12,000 रुपये चुकाने थे मिस्टर रोहन को, तो ये जेठालाल जी के लिए लायबिलिटी हुई। तो जेठालाल जी क्या बोलते हैं कि मैं ये लायबिलिटी रखना नहीं चाहता हूँ। तो जेठालाल जी या तो उसको पे कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे को ये लायबिलिटी बेच सकते हैं। तो जो पे करने की बात है ना, वो ये इंड एस नहीं करता है। लायबिलिटी को अगर आप पे कर रहे हो ना, तो वो इंड एस 113 में बात नहीं हो रही है। इंड एस 13 क्या बात कर रहा है कि अगर आप जेठालाल जी इस लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो जो वो ट्रांसफ़र लायबिलिटी करेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, कोई अमाउंट पे करनी पड़ेगी। और भिड़े जी को ये लायबिलिटी वो अज्यूम कर रहे हैं, भिड़े जी, जेठालाल जी क्या कर रहे हैं, लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और भिड़े जी क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं ये लायबिलिटी को ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, उसे कहते हैं अज्यूम करना। लायबिलिटी एक्सेप्ट, यानी कि जो लायबिलिटी मिस्टर रोहन को चुकाने की थी 12,000 रुपये, जो जेठालाल जी चुका रहे थे, अब भिड़े जी चुकाएंगे। तो उनमें इंड एस क्या कहता है कि आपको लायबिलिटी ट्रांसफ़र करने की भी एग्जिट प्राइस देखनी है, एंट्री प्राइस नहीं देखनी है। तो जेठालाल जी को जो कितनी प्राइस पे करेंगे भिड़े जी को ये लायबिलिटी ट्रांसफ़र करने के लिए, तो भिड़े जी पे करेंगे, जेठालाल जी पे करेंगे से फॉर एग्जांपल 11,000। तो ये प्राइस आपकी एग्जिट प्राइस है, और इस वैल्यू को फेयर वैल्यू कहते हैं। किसी भी असेट की बेचने की प्राइस देखनी है और लायबिलिटी ट्रांसफ़र करने की प्राइस देखनी है, यानी कि किसी असेट से मुक्ति पाना हो तो उससे बेचना पड़ता है। इसी तरह लायबिलिटी से मुक्ति पाना है तो उसे क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है या तो पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इंड एस 113 पे करने की तो बात नहीं कर रहा है, लेकिन लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको कौन सी प्राइस देखनी है, एग्जिट प्राइस। और ये यही जो प्राइस हुई 11,000 रुपये अज्यूम करने की प्राइस, वो भिड़े जी के लिए एंट्री प्राइस हुई, लेकिन वो एंट्री प्राइस की बात नहीं कर रहा है, इंड एस 113 एग्जिट प्राइस की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो दो डेफिनेशन हमने देख ली, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस। हम उसमें आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। वो तो आप अगर एसएफएम आईपीसीसी किया तो आपको पता ही होगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो किसी भी एसेट का, जो आप बॉन्ड हो तो बॉन्ड का इंटरेस्ट प्लस उसका रिडम्पशन वैल्यू, उसका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। अगर आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो, बिजनेस ले रहे हो, तो आप कोई एस्टिमेटेड कैश फ्लो निकालते हो, पहले साल से इस मशीन में मुझे इतने रुपये इसका इनफ्लो होगा, दूसरे साल में इतना होगा, टर्मिनल इनफ्लो इतना होगा, तो उससे कहते हैं कैश एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज ऑफ पॉसिबल फ्यूचर कैश फ्लो। लेकिन ये कैश फ्लो होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, से फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए का मशीन लिया तो उसके कैश फ्लो होने की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
फिर फेयर वैल्यू, द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट एट मेजरमेंट डेट। हाँ, ये फेयर वैल्यू की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। फेयर वैल्यू इज द वैल्यू और इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जेठालाल जी ने कोई असेट बेच दी, फिर जेठालाल जी के लिए से फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर जो उन्होंने बेचा वो स्टॉक एंड ट्रेड नहीं था, लेकिन उनका खुद का फ्रिज था, तो उनका खुद का फ्रिज उन्होंने बेच दिया, तो उस वो फ्रिज बेचने पे उनको जो वैल्यू मिलेगी वो उनके लिए एग्जिट प्राइस हो गई और वो उसकी फेयर वैल्यू हो गई। इसी तरह जेठालाल जी ने जो 12,000 रुपये की लायबिलिटी रोहन जी को चुकानी थी, वो अब वो लायबिलिटी उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। ट्रांसफ़र किसको कर दी? भिड़े जी को कर दी, तो वो 12,000 की लायबिलिटी 11,000 में कर दी, तो वो एग्जिट प्राइस ऑफ लायबिलिटी इज द प्राइस एट विच द लायबिलिटी इज ट्रांसफर्ड to the liability assumer, the person who assumes that liability or the person who accept that liability is called the assumer of that liability। तो हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड एग्जिट कौन कर रहे थे? मिस्टर जेठालाल जी। तो फेयर वैल्यू इज द प्राइस that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participant at the measurement date। अब मार्केट पार्टिसिपेंट कैसे होना चाहिए? हर किसी बंदे को तो हम मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं कहते। सबसे पहले वो नॉलेजेबल होना चाहिए कि ये असेट की इतनी वैल्यू है, उसका उसको नॉलेजेबल होना चाहिए। दूसरी बात, उसके पास विलिंगनेस होनी चाहिए। तीसरा, उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारे उसकी मार्केट पार्टिसिपेंट, हर कोई मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं है। कोई भी आप बुद्धू को बिठा दोगे तो वो कोई असेट को कम में बेच के आएगा, और लेकिन उसका नॉलेज होगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का तो वो करेक्ट दाम पे बेच के आएगा। फिर उसके पास विलिंगनेस भी होने चाहिए। आपके पास असेट है, नॉलेज भी है, लेकिन आपको बेचने की इच्छा ही नहीं है, तो आप मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं हुए। आपके पास नॉलेज भी है, विलिंगनेस भी, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप असेट बेच कैसे सकते हो या खरीद कैसे सकते हो? तो एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो नॉलेज, विलिंगनेस और एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी एसेट को खरीदने या बेचने के लिए, तो उसी को मार्केट पार्टिसिपेंट कहते हैं। उसके अलावा तो आप मार्केट पार्टिसिपेंट बन नहीं सकते। यहाँ पे हम मार्केट पार्टिसिपेंट के बारे में आगे भी पढ़ सकते। देखो, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर बायर्स एंड सेलर्स इन द प्रिंसिपल market for the asset or liability that have all of the following character. They are independent of each other, that is they are not related parties, although the price in the related party transaction may be used an input to fair value measurement if the entity has evidence that the transaction was entered into at market price। यानी कि आपने आर्म्स लेंस प्राइस पे अगर कोई ट्रांजैक्शन किया है तो भी आप रिलेटेड पार्टी, भले ही आपने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया, फिर भी उसको फेयर वैल्यू माना जाएगा, क्योंकि आपने जो मार्केट के साथ जो ट्रांजैक्शन करते और जो वैल्यू लेते वही वैल्यू आपने ली, तो वो आप रिलेटेड पार्टी के साथ का ट्रांजैक्शन भी फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा। फिर दे आर नॉलेजेबल, हैविंग अ रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द असेट एंड लायबिलिटी एंड द ट्रांजैक्शन यूजिंग ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द इन्फॉर्मेशन दैट माइट बी ऑब्टेन्ड थ्रू ड्यू डिलीजेंस एफर्ट्स दैट आर यूजुअल एंड कस्टमरी। उनके पास नॉलेज होना चाहिए कि आपकी असेट खरीदने से पहले वो असेट की क्या सही में दाम हो सकता है, उतना नॉलेज तो होना चाहिए। भले ही एक्सपर्ट नॉलेज नहीं हो, लेकिन ड्यू डिलीजेंस का नॉलेज तो होना चाहिए ना कि असेट की क्या खामियां हैं, क्या खूबियाँ हैं। दे आर एबल टू एंटर इन टू अ ट्रांजेक्शन फॉर द असेट और लायबिलिटी। उसके पास एबलनेस होनी चाहिए, यानी कि एबिलिटी होनी चाहिए। फिर दे आर विलिंग टू एंटर इन टू ट्रांजेक्शन, इच्छा होनी चाहिए। दे आर मोटिवेटेड बट नॉट फोर्स और अदरवाइज कंपेल टू। हाँ, लेकिन उनको कोई कंपेल सेल नहीं होना चाहिए। कोई स्ट्रेस में आके सेल करते हैं तो उसको मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं कहते। से फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसके पास कोई एक असेट थी, वो लेकिन वो जुआ खेल गया, जुआ खेलने की वजह से उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो लॉस होने की वजह से उसको असेट कम में बेचनी पड़ी, क्योंकि अगर जुआ के पैसे नहीं चुकाते जो जुआरी लोग उसको मार डालते, तो वो मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास क्या है, विलिंगनेस है, लेकिन वो फ्री विलिंगनेस नहीं है, उसको कुछ मजबूरी की वजह से बेचना पड़ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बात आती है हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज, द यूज ऑफ नॉन फाइनेंशियल असेट। अब हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज कब बात आती है? जब नॉन फाइनेंशियल असेट की होती है। फाइनेंशियल असेट होती है जैसे कोई इक्विटी शेयर या फिर डिबेंचर, उसका तो आप शेयर मार्केट में से प्राइस निकाल सकते हो, या फिर कोई दूसरी इंडस्ट्री का उसी इंडस्ट्री का किसी दूसरे स्टॉक मार्केट में से
आप प्राइस निकाल सकते हो। तो क्या हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज इज द यूज ऑफ नॉन फाइनेंशियल असेट बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स दैट वुड मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ असेट और द ग्रुप ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज विद इन विच द असेट वुड बी यूज। यानी कि आपको उस असेट से सबसे ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल सकता है, उसे कहते हैं हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। उसको हबू भी कहते हैं, HBU हबू। फिर दूसरा इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच तो आपको सबको ही पता है, हम फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं, उसे इनकम अप्रोच कहते हैं। वैल्यूएशन टेक्निक्स दैट कन्वर्ट फ्यूचर अमाउंट्स कैश फ्लोज टू अ सिंगल करंट अमाउंट दैट इज डिस्काउंटेड अमाउंट, जो हम NPV निकालते हैं वो। द फेयर वैल्यू मेजरमेंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू इंडिकेटेड बाय करंट मार्केट, वो आप पढ़ सकते हो। फिर इनपुट्स, हाँ अब आप वैल्यूएशन करने के लिए अलग अलग इनपुट्स भी लेते हो। से फॉर एग्जांपल आप कोई असेट का या लायबिलिटी का वैल्यूएशन कर रहे हो तो उसके साथ बहुत सारे रिस्क जुड़े हुए होते हैं। असेट के साथ भी रिस्क है और लायबिलिटी आप खरीद रहे हो, अज्यूम कर रहे हो, जैसे कि भिड़े जी ने लायबिलिटी अज्यूम की, अब उनको पे करनी है। तो रोहन जी ने वो अलाउड किया कि ये लायबिलिटी अब भिड़े जी पे करेंगे, तो रोहन जी के लिए काउंटर पार्टी रिस्क भी है ना। रोहन जी ने उधार किसको दिया था, जेठालाल जी को दिया था। अब काउंटर पार्टी रिस्क है, अब अगर जेठालाल जी उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो सब भी देखना होता है। द अजम्पशन दैट मार्केट पार्टिसिपेंट वुड यूज व्हेन प्राइसिंग द असेट और लायबिलिटी इंक्लूडिंग अजम्पशन अबाउट रिस्क सच एज द फॉलोइंग। बहुत सारे अजम्पशन हम कोई भी असेट का वैल्यूएशन निकालते समय करते हैं, उसकी प्राइस निकालते समय करते हैं, तो उससे कहते हैं इनपुट्स। वो इनपुट्स को हम ध्यान में रहते हैं। कोई असेट है तो वो असेट कहाँ पे, उसका लोकेशन क्या है, वो असेट पे कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, वो सारे इनपुट्स है। से फॉर एग्जांपल कोई खेती की ज़मीन है, कोई खेती के लायक ज़मीन है, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड है, तो एग्रीकल्चरल लैंड में हम कोई दूसरे बिजनेस पर्पस नहीं कर सकते, कॉमर्शियल लैंड नहीं कर सकते, तो उससे कहते हैं उसका इनपुट्स। वो हम इनपुट को ध्यान में रखते, मद्देनजर रखते हुए उस असेट की फेयर वैल्यू निकालेंगे। फिर आता है द रिस्क इनहेरेंट इनटू द इनपुट वैल्यूएशन टेक्निक। देखो अब ये दो प्रकार के रिस्क है। एक कहते हैं रिस्क इनहेरेंट इन अ पर्टिकुलर वैल्यूएशन टेक्निक। से फॉर एग्जांपल आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से वैल्यूएशन कर रहे हो, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का इनहेरेंट लिमिटेशन है कि वो एक एस्टिमेट करता है कि इतने इतने कैश फ्लो होंगे, और हो सकता है कि वो मॉडल ही गलत निकल जाए। वो मॉडल जो अजम्पशन ले रहा है, या फिर कोई आप ऑप्शन का प्राइसिंग करते हो, ऑप्शन में बाइनोमियल मॉडल है, तो बाइनोमियल मॉडल में कुछ अजम्पशन है कि दो ही प्राइसिंग होगी, तो दो के अलावा प्राइसिंग होने की तो अनंत संभावना है, इन्फिनिट प्राइसिंग हो सकती है। तो वो मॉडल की लिमिटेशन की वजह से कोई रिस्क आप इनहेरेंट रिस्क पैदा होता है वो मॉडल या वो टेक्निक की इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से, तो उसको कहते हैं रिस्क इनहेरेंट इन अ पर्टिकुलर वैल्यूएशन टेक्निक यूज टू मेजर फेयर वैल्यू। फिर दूसरा रिस्क होता है रिस्क इनहेरेंट इन द इनपुट्स टू द वैल्यूएशन टेक्निक। आपने जो इनपुट्स लिए कि भैया मैंने एस्टिमेट किया NPV मेथड से कि इतने इतने कैश फ्लो होंगे, उसके लिए आपने इनपुट्स यूज़ किए दूसरी कंपनी के इसी प्रकार के प्रोजेक्ट के इनपुट्स। इस कंपनी ने इतने साल पहले ये प्रोजेक्ट लगाई थी तो उसको इतना इनपुट हुआ, इतना कैश फ्लो हुआ था, लेकिन हो सकता है आपको उतना कैश फ्लो ना हो क्योंकि आपकी इतनी मार्केटिंग क्षमता नहीं है, या तो फिर उसने जब मशीन लगाई थी तब उनके पास बहुत सारे उस समय बहुत सारे कम कंपटीटर्स थे, अब बहुत सारे कंपटीटर्स आ गए हैं, या फिर वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया, तो आपको उतना कैश फ्लो ना भी हो तो आपको इनपुट वर्ड का मतलब है कि आप वैल्यूएशन करने के लिए जो भी इनपुट्स ले रहे हो उसमें भी रिस्क रहता है कि वो इनपुट गलत भी हो सकता है। फिर इनपुट्स में भी ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल, वो हम देखेंगे। ऑब्जर्वेबल यानी कि उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हमें मार्केट डेटा जिसके लिए अवेलेबल है उसको कहते हैं ऑब्जर्वेबल, और जिसके लिए मार्केट डेटा अवेलेबल नहीं उसे अनऑब्जर्वेबल कहते हैं। फिर लेवल 1 इनपुट्स, हाँ लेवल 1 2 3 इनपुट्स वो हम आगे देखेंगे, लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ लेवल 1 इनपुट क्या होता है, लेवल 2 इनपुट क्या होता है, लेवल 3 इनपुट क्या होता है। तो लेवल 1 इनपुट है जो उसकी कोटेड प्राइस, कोई शेयर है, कोई सिक्योरिटी है, तो उसकी कोटेड प्राइस होती है मार्केट में विदाउट एडजस्टमेंट, उसे कहते हैं लेवल 1 इनपुट। किसी भी एसेट का आपको एडजस्ट फेयर वैल्यू निकालता है तो उसको लेवल 1 इनपुट क्या हुआ, उसकी कोटेड प्राइस। फिर लेवल 2 इनपुट क्या हुआ, किसी फॉर एग्जांपल आपका कोई शेयर है वो लिस्टेड नहीं है लेकिन उसी इंडस्ट्री का कोई दूसरा शेयर है, से फॉर एग्जांपल वोडाफोन है, वोडाफोन लिस्टेड नहीं है
यानी कि जब मर्जर नहीं हुआ तो उससे पहले की बात करो, वोडा आइडिया का मर्जर नहीं हुआ था, आपको वोडाफोन के शेयर की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? उसी इंडस्ट्री का कोई दूसरा शेयर है, से फॉर एग्जांपल एयरटेल, एयरटेल तो पहले से ही लिस्टेड है बहुत सालों से, तो एयरटेल का जो वैल्यूएशन शेयर मार्केट में है, शेयर प्राइस है, उसको बेच लेंगे। से फॉर एग्जाम्पल 635 रुपीज़ पर शेयर एयरटेल का वैल्यूएशन है BSE या NSE पे, तो उस 635 को प्राइस को हम उसका थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे कि भाई वोडाफोन का कितना नेट एसेट्स था या फिर एयरटेल का कितना नेट एसेट्स था, उसकी कितनी अर्निंग कैपेसिटी, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके हम वोडाफोन के शेयर की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका EBITDA कितना है, EBITDA, और इसका EBITDA कितना है, उसके हिसाब से इसका EBITDA इतना है और उसका प्राइस इतना है, तो इसका EBITDA इतना है तो इसका कितना होना चाहिए आइडियली, उसके कहेंगे हम लेवल 2 इनपुट। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वोडाफोन का सबसे पहले कोटेड प्राइस हम किसकी लेंगे, जहाँ BSE यानी कि BSE और NSE इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टॉक, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टॉक का ट्रेडिंग होता है। लेकिन से फॉर एग्जांपल आपका शेयर का प्राइस BSE NSE से नहीं मिल रहा है, तो किसी आपका वोडाफोन का स्टॉक BSE NSE इंडिया में लिस्टेड नहीं, लेकिन सो फॉर एग्जांपल NYSE में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, तो आप वहाँ की प्राइस ले सकते हो, उसको कहते हैं लेवल 2 इनपुट्स। या तो फिर आप लेवल 3 इनपुट ले सकते हैं। लेवल 3 अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा के जो लेवल 3 अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स होते हैं उसको लेवल 3 इनपुट्स कहते हैं, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, तो लेवल 1 2 3 ये हो गया। देखो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कोटेड प्राइसेस इन एक्टिव मार्केट फॉर आइडेंटिकल असेट्स और लायबिलिटीज दैट द एंटिटी कैन एक्सेस एट द मेजरमेंट डेट। तो कोटेड प्राइस किसी असेट और लायबिलिटी की शेयर मार्केट में जो प्राइस कोट होती है उसे लेवल 1 इनपुट्स कहते हैं। लेवल 2 इनपुट इसको कहते हैं कि जो इनपुट अदर देन कोटेड प्राइस इंक्लूडेड विद इन लेवल 1 दैट आर ऑब्जर्वेबल फॉर द असेट और लायबिलिटी, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको कहीं इनडायरेक्टली मिल जा रहा है, लेकिन दूसरी कंपनी का, आपकी कंपनी भले लिस्टेड नहीं है, वोडाफोन नहीं है, लेकिन एयरटेल का ले लो या जियो का ले लो। फिर लेवल 3 इनपुट अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स, फिर होता है मार्केट अप्रोच, वो भी हम देखेंगे। फिर मार्केट कोरोबोरेटेड इनपुट्स, the inputs that are derived principally from or corroborated by observable market data by correlation और अदर मीन्स, आप मार्केट पे से कोई डेटा ले रहे हैं, इनपुट्स ले रहे हैं, उसे कहते हैं मार्केट कोरोबोरेटेड इनपुट्स। फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमने देख लिया। फिर मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, हाँ ये आपको डेफिनेशन देखनी है, द मार्केट दैट मैक्सिमाइजेस द अमाउंट दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल द asset or minimize the amount that would be paid to transfer the liability after taking into account transaction cost and transportation cost, उसे कहेंगे मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। अब उस मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट का एक एग्जांपल लेते हैं। आप अहमदाबाद शहर में रह रहे हो और आपको सब्जी बेचनी है, आपका सब्जी का फार्म है, तो एक मार्केट है कालूपुर मार्केट, एक है जमालपुर मार्केट सब्जी का। तो आप इस दोनों में से आपको से फॉर एग्जांपल टमाटर बेच रहे हो, तो टमाटर 20 रुपया पर केजी यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे 25 रुपया पर केजी मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा फायदा कौन से में होगा, जमालपुर में होगा या कालूपुर में होगा? तो ऑब्वियसली जमालपुर में होगा, लेकिन आपको उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी डिडक्ट करके फिर आपको उसको मोस्ट एडवांटेजेस प्राइस निकालना है। से फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसकी है 3 रुपया, तो आपको इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट 3 रुपया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 2 रुपया, तो यहाँ पे आपको 15 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 2 रुपया है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 है, क्योंकि आपके घर के पास ही है। तो मोस्ट एडवांटेजेस कौन सा हुआ, 23 रुपये वाला हुआ। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों को मद्देनजर रखते हुए जो मोस्ट एडवांटेजेस आपको सबसे ज़्यादा प्राइस मिलती है टू सेल एन एसेट, उस मार्केट को कहते हैं मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। ठीक है, लेकिन इसमें आपको खास ध्यान रखना है कि मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट डिसाइड करने के लिए दोनों कॉस्ट लेस करते हैं, लेकिन फेयर वैल्यू निकालने के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस नहीं करते, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस करते हैं। ठीक है, वो आगे सीए इंस्टीट्यूट का एक सम है, उसको भी हम देखेंगे उसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नॉन परफॉर्मेंस रिस्क यानी कि डिफॉल्ट रिस्क
ऑब्जर्वेबल इनपुट्स जिसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो इनपुट्स पब्लिकली अवेलेबल, इनपुट डेटा डेवलप यूजिंग मार्केट डेटा सजेस्ट पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल इवेंट्स और ट्रांजेक्शन एंड द रिफ्लेक्ट द अजम्पशन दैट मार्केट पार्टिसिपेंट वुड यूज व्हेन प्राइसिंग द असेट और लायबिलिटी। तो आपको ऑब्जर्व, आप नॉर्मली उसको ऑब्जर्व कर पाते हो इंटरनेट से या तो फिर कोई डेटा सर्विस प्रोवाइडर से उस डेटा को खरीद सकते हो, तो उसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल इनपुट। फिर ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन, ऑर्डरली ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन दैट अज्यूम्स एक्सपोजर टू द मार्केट फॉर अ पीरियड बिफोर द मेजरमेंट डेट to allow the marketing activities that are usual and customary for transactions involving such assets or liability. It is not a forced transaction. Orderly transaction का क्या मतलब है कि आपको कोई डिस्ट्रेस में या फिर फाइनेंशियल टर्मोइल में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आके वो सेल नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल सेल कर रहे हो, उसे कहते हैं ऑर्डरली ट्रांजेक्शन। फोर्स लिक्विडेशन और डिस्ट्रेस असेट नहीं हो, ठीक है। और इसका प्रॉपरली मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग प्रॉपर करने के बाद आपको जो प्राइस मिलती है उसे कहते हैं ऑर्डरली ट्रांजैक्शन में मिली हुई प्राइस। फिर प्रिंसिपल मार्केट, जहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है, यहाँ पे आपको देखना है सबसे ज़्यादा प्राइस नहीं देखनी है आपको, सबसे ज़्यादा ये दो मार्केट मैंने आपको दिखाए, एक कालूपुर मार्केट है और एक जमालपुर मार्केट है। तो मोस्ट एडवांटेजेस यहाँ पे है टमाटर के लिए। लेकिन से फॉर एग्जांपल कालूपुर में प्रतिदिन 1,00,000 केजी टमाटर बिक रहे हैं, 1,00,000 केजी, और 1,00,000 केजी पर डे टमाटर बिक रहे हैं, और यहाँ पे 10,000 केजी ही बिक रहे हैं, 10K केजी। तो प्रिंसिपल मार्केट कौन सा हुआ, जहाँ पे मोस्ट वॉल्यूम होता है, हाईएस्ट वॉल्यूम विथ हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज। तो हम कालूपुर मार्केट को प्रिंसिपल मार्केट कहेंगे, और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट जमालपुर होगा, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस करके आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल मार्केट, द मार्केट विद द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट इज हाईएस्ट वॉल्यूम एंड हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द असेट और लायबिलिटी। फिर रिस्क प्रीमियम, वो आप समझो RM माइनस RF इज इक्वल टू रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा आप कर सकते हो। कंपेंसेशन शॉर्ट बाय रिस्क अवर्स मार्केट पार्टिसिपेंट फॉर बेरिंग द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द कैश फ्लोज ऑफ एन असेट और अ लायबिलिटी। आप कुछ रिस्क ले रहे हो कुछ असेट के, तो रिस्क के लिए आप कुछ ज़्यादा रिटर्न भी मांगोगे, तो उससे कहते हैं रिस्क प्रीमियम। से फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होती है, गवर्नमेंट बैंक्स के FD में सिक्योरिटी होती है, लेकिन आपने प्राइवेट कंपनी का बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, प्राइवेट बैंक में या फिर प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स में, तो क्या होगा कि आप ज़्यादा रिटर्न मांगोगे, तो उसको कहेंगे रिस्क प्रीमियम। फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है किसी असेट को बेचने के लिए। से फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रोकर को पेमेंट करते हो, या तो फिर अगर ऑनलाइन बेचते हो तो आप फ्लिपकार्ट को पेमेंट करते हो, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। द कॉस्ट टू सेल एन एसेट और ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन द प्रिंसिपल और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट फॉर द असेट और लायबिलिटी दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ द असेट और द ट्रांसफर ऑफ द लायबिलिटी एंड मीट बोथ ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। दे रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम एंड आर इसेंशियल टू दैट ट्रांजेक्शन। They would they would not have been occurred by the entity had the decision to sell the asset or transfer the liability not been made। यानी कि आपको उसी टमाटर बेचने के लिए ही आपने कमीशन पे किया। अगर आपने टमाटर नहीं बेचे होते तो आपको उस सब्जी के डीलर को कमीशन देना नहीं पड़ता। सब्जी के भी ब्रोकर्स होते हैं, तो आपने टमाटर बेचने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि 2 रुपया ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगाई, 2 रुपया आपने ब्रोकर को और यहाँ पे 3 रुपया दिया, तो उसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहेंगे, क्योंकि आपको बेचना था तो वो कॉस्ट तो लगानी थी, वो डायरेक्टली अटैच विथ सेलिंग ऑफ टमाटर है। तो आपको टमाटर बेचना है, तो आपको 3 रुपये की ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगानी है। अगर आप टमाटर नहीं बेचते तो ये कॉस्ट नहीं होती, तो उसी को ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहेंगे। वरना फिर आप कोई दूसरी कॉस्ट लगा रहे हो, आप से फॉर एग्जांपल कोई दूसरा कॉस्ट लगा रहे हो जो आप टमाटर नहीं बेचते तो भी लगाने ही वाले थे, तो फिर उससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं कहेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, द कॉस्ट दैट वुड बी इनकर टू ट्रांसपोर्ट द असेट फ्रॉम इट्स करंट लोकेशन टू इट्स प्रिंसिपल और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है, आपके फार्म से कालूपुर मार्केट से या कालूपुर मार्केट तक या तो फिर जमालपुर मार्केट तक ले जाने की कॉस्ट को क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।
ये है आपका मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट, ये है आपका प्रिंसिपल मार्केट। प्रिंसिपल मार्केट वो होता है जहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ वॉल्यूम होता है विथ हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी, और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट वो होता है जहाँ पे ट्रांजैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस करने के बाद सबसे ज़्यादा आपको प्राइस मिलती है, उसे कहते हैं मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। फिर हो गई यूनिट ऑफ अकाउंट। हाँ, अब यूनिट ऑफ अकाउंट की मैं आपको बात करना चाहूँगा। लेवल एट विद द असेट और लायबिलिटीज एग्रीगेटेड और डिसएग्रीगेट एग्रीगेटेड, उससे कहते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट हम थोड़ा पहले से ही देख लेते हैं, इंडेस में तो देखेंगे ही देखेंगे। अब थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ एक स्लाइड मुझे मिली है उसमें से। देखिए, अब यूनिट ऑफ अकाउंट में पहले बताना चाहूँगा कि कोई एक असेट को आप इंडिविजुअली बेचो या फिर कोई ग्रुप ऑफ असेट्स को बेचो या पोर्टफोलियो को बेचो या कोई ग्रुप ऑफ लायबिलिटीज़ के पोर्टफोलियो को बेचो, इंडिविजुअली या फिर इन ग्रुप्स। तो ग्रुप्स का एग्जांपल क्या होगा कि कोई एक पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स है, आपने कोई एक पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स बना रखा है, वो आप पूरे का पूरा बेच रहे हो, तो उसे कहेंगे यूनिट्स ऑफ अकाउंट में आपने पूरा पोर्टफोलियो बेचा। और इंडिविजुअली आपने क्या बेच दिया, एंड रिलायंस का शेयर बेचा, इन्फोसिस का शेयर बेचा, या तो फिर कोई एक पर्टिकुलर मशीन बेची, तो उससे क्या कहेंगे हम इंडिविजुअली ये असेट को बेच रहे हैं, तो वो भी एक यूनिट ऑफ अकाउंट है। और इन ग्रुप्स में बेचते हो तो वो भी एक यूनिट ऑफ अकाउंट है। या फिर आपने कोई कैश जनरेटिंग यूनिट बेच दिया, तो कैश जनरेटिंग यूनिट क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। से फॉर एग्जांपल आप बालाजी वेफर्स की कंपनी हो, तो बालाजी वेफर्स बालाजी वेफर्स या फिर आपने बहुत जो भी हल्दीराम का जो भी नाम सुना वो वेफर का नाम समझ लीजिएगा, अगर आपने बालाजी का नाम नहीं सुना है तो। यहाँ पे तो बहुत फेमस है गुजरात में। तो बालाजी वेफर्स है, वो क्या कर रही है, उसके पास वेफर्स बनाने के लिए बहुत सारी मशीन होती है। सबसे पहले शॉर्टिंग मशीन, फिर उसके पास कढ़ाई होगी, कढ़ाई, फिर उसके पास चमचा होगा, फिर उसके पास कोई पैकिंग मशीन होगी ऑटोमेटिक, फिर गैस होगी, स्टव होगा। तो ये सारी असेट्स मिला के कैश जनरेट कर सकते हैं। क्या ये कोई एक कढ़ाई या कोई चमचा इंडिविजुअली कैश जनरेट कर सकता है? अगर बालाजी खाली कढ़ाई लेके या फिर कोई चमचा लेके वेफर बनाना चाहेगा तो वो वेफर थोड़ी बनेगी। उसके लिए पैकिंग मशीन चाहिए, शॉर्टिंग मशीन चाहिए, स्टव चाहिए, गैस चाहिए, लाइटर चाहिए, ठीक है। और वो एक मकान भी चाहिए, एक फैक्ट्री या शेड चाहिए जिसमें वो पूरा ये उत्पादन कर पाए, प्रोडक्शन कर पाए। तो ये क्या हो गया, CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट। तो यूनिट ऑफ अकाउंट आपका क्या हो सकता है, या तो इंडिविजुअल असेट हो सकती है या तो फिर कैश जनरेटिंग यूनिट हो सकता है, ठीक है। अगर आप पोर्टफोलियो को भी ले सकते हो, पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स को भी हम एक यूनिट ऑफ अकाउंट कह सकते हैं। तो आप पूरा पोर्टफोलियो भी बेच सकते हो, पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक बिग 4 कंपनी का एक आर्टिकल निकाला है जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। मैं पहले इस साइड वाला पढ़ूंगा, फिर इस साइड वाला पढ़ूंगा 150% में। देखो, यूनिट ऑफ अकाउंट, द डिटर्मिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ अकाउंट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड प्रायर टू डिटरमाइनिंग द फेयर वैल्यू and is defined as the level at which an asset or liability is aggregated or disaggregated in IFRS for recognition purpose। आप कौन से लेवल पे उसको एग्रीगेट कर रहे हो या डिसएग्रीगेट कर रहे हो, यानी कि आप CGU हो तो पूरा एग्रीगेशन आपको सारी एसेट का करना पड़ेगा। The unit of account is determined under IFRS applicable to the asset or liability or group of assets and liabilities that requires fair value measurement। तो आपको सबसे पहले यूनिट ऑफ अकाउंट डिसाइड करना है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या लिखा है, द आइटम फॉर विच द फेयर वैल्यू इज डिटरमाइंड मे बी सिंगल असेट और सिंगल लायबिलिटी सच एज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, और अ शेयर इन अ पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटी जैसे रिलायंस का शेयर, इन्फोसिस का शेयर, और इट मे बी अ ग्रुप ऑफ असेट, अ पोर्टफोलियो ऑफ रिसीवेबल्स। आपके पास बहुत सारे रिसीवेबल है, उसको आप पूरा बेच देते हो, एग्जिट प्राइस उसकी फेयर वैल्यू होगी। फिर ग्रुप ऑफ लायबिलिटीज, पोर्टफोलियो ऑफ डिपॉजिट्स, आपने पब्लिक से डिपॉजिट ले रखी और आप पूरी कंपनी बेच रहे हो, तो जो कंपनी आपको
जिस कंपनी में आपकी कंपनी मर्ज हो रही है तो वो ट्रांसफर ही कंपनी, तो वो ट्रांसफर ही कंपनी पूरी लायबिलिटीज ले लेगी, तो वो एक यूनिट ऑफ अकाउंट हो गया। फिर और अ ग्रुप ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी दैट इज अ सीजीयू एंड अ बिजनेस और एन असेट ग्रुप विच इज हेल्ड फॉर सेल, तो इससे आपको यूनिट ऑफ अकाउंट समझना है। IFRS 13 does not generally provide specific guidance on the determination of the unit of account, rather it directs prepares to other IFRS to make determination। आपको इस इंड एस में नहीं तय करना है कि यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, लेकिन दूसरे इंड एस में से वो तय करता है कि यूनिट ऑफ अकाउंट क्या रहेगा। ठीक है, तो उसका हम डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी आप इसके डेफिनेशन देख लीजिए। ये हो गया यूनिट्स ऑफ अकाउंट। फिर हो गया अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स, इनपुट्स फॉर विच मार्केट डेटा आर नॉट अवेलेबल एंड डेटा डेवलप्ड यूजिंग द बेस्ट इंफॉर्मेशन available about the assumption and that market participant will use when pricing the asset or liability। आपके पास कोई शेयर प्राइस नहीं है, उसका कोई लिस्टिंग नहीं हो रहा है, या तो फिर उसके कोई कैश फ्लो भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप अनऑब्जर्वेबल इनपुट से उसका प्राइस डिसाइड करते हो, उससे कहते हैं लेवल 3 इनपुट्स, उससे कहते हैं अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। ठीक है, तो ये हमने बेसिक डेफिनेशन देख लिया। अब हम पूरा इंडेक्स एक 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। और अब एकदम इजी रहेगा क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ ली है। क्या नॉर्मल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर बीइंग normally assets and liability are being exchanged between parties at their agreed terms and conditions based on the prices which might be related to the entity or event based, or in other words which is not at arm's length prices. To define fair values, one has to ensure that the values reflect all assumption and all adjustment to change from transaction specific to entity specific to normal transaction। कोई entity specific transaction आपको नहीं देखना है, आपको असेट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन बनाना है। और एंटिटी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हो गया किसी ने आपको सस्ते में बेच दिया क्योंकि वो आपकी रिलेटेड पार्टी थी, तो उसका आपको प्राइस बढ़ा देना है क्योंकि वो फेयर वैल्यू नहीं है। इन अदर वर्ड इट इज अ मार्केट बेस्ड वैल्यू रादर देन एंटिटी स्पेसिफिक प्राइसेस, एंड द प्राइसेस शुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी। अगर आप असेट से मुक्ति प्राप्त करना, ये फेयर वैल्यू क्या है? मुक्ति वैल्यू। असेट से मुक्ति पाना है तो क्या करना है? असेट को बेच दो। लायबिलिटी से मुक्ति पाना है तो क्या करना है? ट्रांसफर कर दो। पे नहीं करना है, पे नहीं करना है लायबिलिटी को, पे वाला इसमें इंक्लूडेड नहीं है। लायबिलिटी को ट्रांसफर करो, असेट को सेल करो। सेल करोगे तो प्राइस रिसीव होगी, लायबिलिटी को ट्रांसफर करोगे तो पे करना पड़ेगा। सामने वाला लायबिलिटी अज्यूम करेगा, एक्सेप्ट करेगा। In a normal transaction other than any stress or stress sell, fair value is an exit price and not a price at which asset or liability sales or purchase is otherwise। आपको एंट्री प्राइस नहीं देखनी है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफाइंस फेयर वैल्यू, सेट्स आउट इन अ सिंगल इंडेक्स फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग फेयर वैल्यू। इसके पहले ये 2013 में IFRS में आया और 2015 में इंडिया में आया जब इंडेक्स, तब से ये एक ही स्टैंडर्ड है फेयर वैल्यू का। उससे पहले फेयर वैल्यू का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, इवन IFRS में भी नहीं था। तो ये कंपेरेटिवली नया IFRS है और नया इंडेक्स है। इंडेक्स तो नहीं है हालांकि हमारे लिए। तो फेयर वैल्यू इज अ मार्केट बेस्ड मेजरमेंट, नॉट एन एंटिटी स्पेसिफिक मेजरमेंट। ये आपको कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर वैल्यूएशन एग्जाम दे रहे हो तो ये आपको MCQ में भी पूछ सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फेयर वैल्यू मेजरमेंट इज टू एस्टिमेट द प्राइस एट विच एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन टू सेल द असेट और ट्रांसफर द लायबिलिटी वुड टेक प्लेस बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट वो भी हमने देख लिया क्या होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, एबल होते हैं, विलिंग होते हैं। एट द मेजरमेंट डेट अंडर करंट कंडीशंस, और वो आपको वैल्यू कब निकालनी है? आज निकालिए, जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है। फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालनी है, पास्ट वैल्यू नहीं। तो जिस दिन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, उसी दिन की वैल्यू देखनी है, पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं। अंडर करंट मार्केट कंडीशन, करंट की क्या मार्केट सिचुएशन है उसके हिसाब से फेयर वैल्यू निकलेगी। That is an exit price at the measurement date from the perspective of a market participant that holds the asset or owes the liability। जिसके पास वो असेट या लायबिलिटी थी, वो अगर उसको ट्रांसफर कर देता है लायबिलिटी को या असेट को सेल कर देता है, तो अगर असेट बेचते समय जो पैसा मिलेगा और लायबिलिटी ट्रांसफर करते समय जो पैसा देने पड़ेगा उसको एग्जिट प्राइस कहेंगे और उसी को फेयर वैल्यू ऑफ दैट असेट और लायबिलिटी कहेंगे। फिर आगे आता है when a price for an identical asset or liability is not observable, entity measures fair value using another valuation technique that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs। अगर आपके पास कोई कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है या फिर उसी प्रकार के कोई दूसरे असेट के वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मैक्सिमाइज द
uses of observable inputs and minimize the uses of unobservable inputs. ऑब्जर्वेबल इनपुट्स यानी कि कुछ दूसरा डेटा अवेलेबल है, मार्केट में डेटा अवेलेबल होना उसको कहते हैं ऑब्जर्वेबल इनपुट्स. हमने ऑब्जर्वेबल इनपुट्स की डेफिनेशन भी देख ली है. तो ऑब्जर्वेबल डेटा में से हम उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और जितना हो सके उतना मैक्सिमम ऑब्जर्वेबल डेटा का यूज़ करेंगे और अनऑब्जर्वेबल डेटा का मिनिमम यूज़ करेंगे. Because fair value is a market-based measurement, it is measured using the assumption that market participant would use when pricing the asset or liability, including assumption about risk. वो भी हमने देख लिया क्या क्या risk के related assumptions करेंगे. As a result, an entity's intention to hold an asset or to settle or otherwise fulfill a liability is not relevant when measuring a fair value. अगर आप asset को पकड़ के रखेंगे यानी कि होल्ड करके रखेंगे और 5 साल के बाद क्या वैल्यू आएगी वो आपको नहीं देखना है, आपको आज मेजरमेंट की वैल्यू देखनी है. या तो फिर आप लायबिलिटी को खुद फिल पे करेंगे या सेटल करेंगे वो वैल्यू भी नहीं देखनी है. अगर आप लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे तो क्या वैल्यू आप पे करेंगे वही देखनी है, और या फिर असेट को सेल करेंगे तो क्या रिसीव करेंगे वही फेयर वैल्यू है. ठीक है. द डेफिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू फोकसेस ऑन असेट्स एंड लायबिलिटी बिकॉज दे आर अ प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग मेजरमेंट. फिर स्कोप क्या है, स्कोप हम देखते हैं. एग्जाम्पल फेयर वैल्यू. हाँ, there are many indices which require measuring assets, liabilities as fair values, and whenever it is required to be fair valued, one looks at the index 113. It means that standard will cover all such requirements of another standard where fair value measurement and disclosure is needed. कोई भी इंडेक्स में देख लो, इंडेक्स 100 इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, उसमें फेयर वैल्यू की मैटर आती है. तो वहाँ पे वो इंडेक्स की फेयर वैल्यूएशन कौन से तरीके से करेंगे, हाउ. तो इंडेक्स 113 पे ध्यान दिया जाएगा. जहाँ जहाँ पे भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी बहुत सारे इंडेक्स है, उसमें जहाँ पे भी वैल्यूएशन का इंडेक्स है उसमें फेयर वैल्यू की बात आएगी. तो कौन सा वैल्यू इंडेक्स देखिए जाए, इंडेक्स 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट. फिर आगे देखते हैं एग्जाम्पल. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज रिक्वायर्ड अंडर इंडेक्स 105 फॉर असेट्स हेल्ड फॉर सेल. तो उसका भी जिक्र, फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो इंडेक्स 113 बताएगा. फेयर वैल्यू थ्रू PNL, FVTPL और फेयर वैल्यू थ्रू OCI एज रिक्वायर्ड अंडर 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट इंडेक्स 16. बायोलॉजिकल असेट मेजर फेयर वैल्यू इंडेक्स 41. तो सारे की फेयर वैल्यू हाउ, हाउ का जवाब कौन देगा, इंडेक्स 113. वो इज नॉट कवर्ड. व्हाट इज़ नॉट कवर्ड, तो कवर्ड में क्या नहीं है, शेयर बेस्ड पेमेंट कवर्ड नहीं है. लीजिंग ट्रांजैक्शन के लिए अलग से इंडेक्स 116, इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, इंडेक्स 2 इन्वेंट्रीज जिसमें फेयर वैल्यू नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर टू फेयर वैल्यू कॉस्ट. और एनआरवी नेट रियलाइजेबल दैट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फर्दर कॉस्ट टू सेल, तो उसको वो एक तरीके से फेयर वैल्यू हुई. फिर डिस्क्लोजर एक्सक्लूजन आपको इसका इंडेक्स इंडेक्स 19 प्लांट असेट मेजर एट फेयर वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद इंडेक्स 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, उसको डिस्क्लोजर नहीं करना है. और असेट फॉर विच रिकवरेबल अमाउंट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इन अकॉर्डेंस विद इंडेक्स 36 इम्पेयरमेंट, उसको नहीं लेना है. ठीक है. दिस इंडेक्स डिफाइंस द फेयर वैल्यू इज द प्राइस that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. orderly transaction कैसा होना चाहिए, जो स्ट्रेस में नहीं किया गया हो. मार्केट पार्टिसिपेंट कैसे नहीं होने चाहिए, रिलेटिव नहीं होने चाहिए. मार्केट पार्टिसिपेंट कैसे होने चाहिए, नॉलेजेबल होने चाहिए, विलिंग होने चाहिए, एबल होने चाहिए. ठीक है. एट द मेजरमेंट डेट, और कब देखना है, मेजरमेंट डेट. तो ये पूरा डेफिनेशन आप पढ़ लो. द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट एट द मेजरमेंट डेट. अब एक का एक ही बात, अब पूरे इंडेक्स में यही बात रिपीटेटिवली बात होती रहेगी. ठीक है. अब देखो दो प्रकार के रिस्ट्रिक्शन होते हैं, एक होता है असेट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन और एंटिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन. तो आपको असेट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखना है उसकी वैल्यू निकालते समय, और एंटिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में नहीं रखना है. सिंपल सी बात है, देख लीजिए. अगर आप हो टाटा, ठीक है, टाटा सन्स, और आपके पास एक लैंड पड़ी है और वो लैंड में रिस्ट्रिक्शन ऐसा है कि सिर्फ आप इस असेट को कॉमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप जिसको बेचोगे वो बंदा इसको कॉमर्शियली यूज़ कर सकता है, नो कमर्शियल पर्पस. तो ये कैसा हुआ, आपका एंटिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन हुआ.
तो उसको ध्यान में नहीं रखना है, नहीं रखना है फेयर वैल्यू। जो बंदा खरीदेगा वो तो पूरी लैंड का पूरा कमर्शियल पर्पज से यूज़ कर पाएगा, तो उसकी फेयर वैल्यू इस रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में न लेते हुए निकालनी है। लेकिन अगर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि इस लैंड को कोई भी बंदा, एनी वन कैन नॉट यूज दिस लैंड फॉर कमर्शियल पर्पस, तो उस लैंड की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि इसका कमर्शियल यूज़ नहीं हो पाएगा, तो उसका आपको रेसिडेंशियल यूज़ करना पड़ेगा या फिर ट्रस्ट वाला यूज़ करना पड़ेगा, तो फिर उसकी कोई वैल्यू ज़्यादा रहेगी नहीं। तो वो कैसे रिस्ट्रिक्शन हो गए, असेट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन, तो उसको ध्यान में रखना है और उसकी वजह से उसकी जो फेयर वैल्यू हो वो डाउन हो जाएगी, और वो डाउन वैल्यू को ही फेयर वैल्यू मानना है। लेकिन एंटिटी स्पेसिफिक रीजंस की वजह से जो वैल्यू डाउन हो रही है या अप हो रही है उसको ध्यान में नहीं लेना है, आपको असेट स्पेसिफिक रीजंस ध्यान में लेने हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ एंटिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन, और दूसरा होता है असेट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन। तो इसको ध्यान में लेना है, इसको ध्यान में नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या लिखा है, इंस्टेड द फेयर वैल्यू मेजरमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेट और लायबिलिटी, द कंडीशन एंड लोकेशन ऑफ द असेट एंड रिस्ट्रिक्शन इफ एनी ऑन द सेल और यूज। आपको उसका कंडीशन देखना है, लोकेशन देखना है और उसके रिस्ट्रिक्शन देखने हैं। द रिस्ट्रिक्शन और द कंडीशन relating to asset which can affect the future economic benefit from the asset need to be considered while determining the fair value. The standard emphasizes that in order to get a fair value of an asset or liability, the restrictions or conditions that might be related to a particular entity should not be taken into account, because a fair value will be based on a market participant assumption rather than to entity specific conditions or restrictions which usually will not affect the fair value of an asset or liability. ठीक है, तो आपको मार्केट के जो एंटिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है उसको ध्यान में नहीं लेने हैं। The restriction could be entity specific or asset specific or liability specific. Hence, all such restrictions which are asset specific and being transferred to the buyer as it is, then this will be considered while calculating the fair value. अब जो भी खरीदेगा उसको भी ये रिस्ट्रिक्शंस लागू पड़ेंगे ही पड़ेंगे, उसी को ध्यान में लेना है। जो लागू नहीं पड़ेंगे खरीदने वाले को, उसको नहीं लेना है। इन कॉन्ट्रास्ट, इफ द रिस्ट्रिक्शन आर एंटिटी स्पेसिफिक दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। यही तो बात बताइए, एंटिटी स्पेसिफिक नो, एसेट स्पेसिफिक यस। तो ये दो एग्जांपल आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ ही जाएंगे। ये पहला एंटिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है और दूसरा है असेट स्पेसिफिक। अब आपके पास कोई कार है, अगर येलो बैज होता है तो वो क्या होती है, कमर्शियल कार होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और वाइट बैज होता है, वाइट नंबर प्लेट, तो वो प्राइवेट यूज़ के लिए होती है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कमर्शियल व्हीकल की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। फिर यूनिट ऑफ अकाउंट हमने थोड़ा चर्चा किया, अब डिटेल में चर्चा करते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट इज एन असेट और लायबिलिटी इज एग्रीगेटेड or disaggregated for recognition. An asset or liability is aggregated or disaggregated for measurement. Ind AS 113 describe how to measure fair value, not what is being measured at fair value. Ind AS क्या बता रहा है, how you will measure fair value, but not what is being measured at fair value. Ind AS 113 talks about how fair value is measured, how fair value is measured, but it does not talk about what is being measured at fair value.
Other index specify whether a fair value measurement consider an individual asset or a liability or a group of asset or liabilities, that is unit of account. अदर इंडेस आपको बताएंगे आपको उसको इंडिविजुअली लेना है या फिर ग्रुप्स में लेना है, जो हमने आगे देखा. वेदर द असेट और लाइबिलिटीज अ स्टैंड अलोन असेट और लाइबिलिटी और अ ग्रुप ऑफ असेट्स और अ ग्रुप ऑफ लाइबिलिटीज और अ ग्रुप ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज फॉर रिकॉग्निशन or disclosure purposes depends on its units of account. The unit of account for the asset or liability shall be determined in accordance with the index that requires or permits the fair value measurement except as provided in this index. This essentially defines the level of aggregation or disaggregation while calculating fair values. अब वो यूनिट क्या होता है वो तो स्पेसिफिक इंडेक्स ही बताएगा. इंडेक्स 16 वगैरह जो इंडेक्स है, इंडेक्स 108 या 9 जो भी फेयर वैल्यू इंडेक्स 109 जो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट बताता है. एन एंटिटी हैविंग सर्टेन सिक्योरिटीज विच आर कोटेड एट मार्केट and these are recognized at fair value in the balance sheet. Quoted price at individual level will be used in order to find fair values of these investments. and आपको हर एक शेयर, आपके पास 10 शेयर है, रिलायंस का है, इन्फोसिस का है, SBI कार्ड का है, फिर एयरटेल का है, जियो का तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन वोडा आइडिया का, तो हर एक का आपको अलग अलग प्राइस देना होगा. तो ये आपका इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अकाउंट हो गया. और आपको कोई ग्रुप ऑफ असेट्स है जो CGU है, तो उसको आप CGU को भी fair value निकाल सकते हो. in order to evaluate fair values of assets to identify impairment as per index 36 which requires to measure such fair values at CGUs, hence group of assets will be used in order to find fair values. फिर क्या होता है ट्रांजैक्शन. अब आगे बढ़ते एसी इंस्टीट्यूट के मॉडल में लिखा है द ट्रांजैक्शन. अब तक हमने देख लिया. अब आगे देखते हैं. अब फेयर वैल्यू मेजरमेंट अज्यूम दैट द असेट और लायबिलिटी इज एक्सचेंज इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट टू सेल एन एसेट और टू ट्रांसफर द लायबिलिटी एट द मेजरमेंट डेट अंडर करंट मार्केट कंडीशन. और फेयर वैल्यू मेजरमेंट अज्यूम दैट द ट्रांजैक्शन टू सेल द असेट और ट्रांसफर द लायबिलिटी टेक्स प्लेस ईदर इन द प्रिंसिपल मार्केट for the asset or liability or the most in the absence of the principal market in the most advantageous market for the asset or liability. हमने आगे देख लिया प्रिंसिपल मार्केट क्या होता है, मोस्ट एडवांटेजेस क्या होता है. देयर कुड बी डिफरेंट प्रिंसिपल मार्केट फॉर डिफरेंट रिपोर्टिंग एंटिटीज इवन बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप. दो बंदों अलग है एक ही इंडस्ट्री में, लेकिन दोनों के लिए प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट अलग अलग हो सकता है. The principal market oblique most advantageous market would separately be evaluated for different asset and different liabilities under the fair value requirement. हर एक asset के लिए अलग अलग प्रिंसिपल मार्केट हो सकता है और हर एक asset के लिए अलग अलग मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट हो सकता है. और प्रिंसिपल मार्केट क्या होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है और हाईएस्ट लेवल ऑफ वॉल्यूम विथ हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज़. देखो मार्केट विच इज़ नॉर्मली द प्लेस इन विच assets and liabilities are being transacted with highest volume. हाईएस्ट वॉल्यूम पे अंडरलाइन कीजिए, हाईएस्ट वॉल्यूम विथ हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज कंपेयरिंग विथ एनी अदर मार्केट अवेलेबल फॉर सेम ट्रांजेक्शन सिमिलर ट्रांजेक्शन. हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज और हाईएस्ट वॉल्यूम. if there is principal market the price in the market must be used even if the prices in the other markets are most advantageous. अगर प्रिंसिपल मार्केट में जो प्राइस है वो आपके पास अवेलेबल है तो फिर आप मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट की प्राइस नहीं ले सकते. बिकॉज द प्रिंसिपल मार्केट इज़ द मोस्ट लिक्विड मार्केट फॉर द असेट और द लायबिलिटी. द मार्केट विल प्रोवाइड द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव इनपुट फॉर अ फेयर वैल्यू मेजरमेंट. तो मोस्ट लिक्विड मार्केट आप इस तीन शब्दों को लिख सकते हो. हाईएस्ट वॉल्यूम विथ हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज एंड मोस्ट लिक्विड मार्केट. हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि आप समझ लीजिए प्रिंसिपल मार्केट आपने तय कर लिया ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह निकाल के, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस कर करके आपने प्रिंसिपल मार्केट और वो दोनों मार्केट डिसाइड कर दीजिए. अब मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट पे आते हैं. यहाँ पे प्राइस है 25 और यहाँ पे 28, तो आप कौन सी प्राइस लेंगे फेयर वैल्यू की, ये लेंगे भले ही मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिल रही हो. फिर शेयर ऑफ अ कंपनी विच इज़ लिस्टेड इन BSE एंड NSE
NYSE, that is New York Stock Exchange, has different closing price at the year end. The price at BSE has greatest volume and activities, whereas NSE it is less in terms of volume transacted in the period. Since BSE has got highest volume and significant level of uh, activity comparing to other market, although the closing price is higher at NYSE, the closing price at BSE would be taken. बहुत ऑब्वियस सी बात है, जहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा उस मार्केट की वैल्यू लेंगे. फिर मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट, दिस इज द मार्केट विच मैक्सिमाइज द अमाउंट दैट वुड बी रिसीव व्हेन द एंटिटी सेल्स एन एसेट और मिनिमाइज द अमाउंट दैट विल बी पेड वाइल ट्रांसफरिंग द लायबिलिटी. देखो आप मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट किसको कहेंगे? मैक्सिमम अमाउंट मिलेगी आपको क्या करने पे? सेल ऑफ असेट करने में. और मिनिमम अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, ये मैक्सिमम अमाउंट रिसीव होगी. और मिनिमम अमाउंट पे करनी होगी टू ट्रांसफ़र अ लायबिलिटी. ये दोनों मुक्ति वाली चीज़ हो गई, यानी कि आपको एग्जिट प्राइस देखनी है, एग्जिट प्राइस ऑफ सेलिंग ऑफ असेट, एग्जिट प्राइस ऑफ ट्रांसफरिंग ए लायबिलिटी. और ये जहाँ मिनिमम होगी उस मार्केट को मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट कहेंगे, और ये मैक्सिमम होगी सेल प्राइस. In the absence of the principal market, this market is used for fair valuation of the assets and liabilities. In many cases, principal market and most advantageous market are the same market. अब ये एग्जांपल आप ले सकते हो कि एक्सपोर्ट, कोई एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रही है और इंपोर्ट हो रही है. अगर 90% इंडिया में हो रही है, उसका वॉल्यूम 90% इंडिया में है, तो वो इंडिया ही इसका प्रिंसिपल मार्केट होगा. और 10% एक्सपोर्ट हो रही है, तो भले ही एक्सपोर्ट में ज़्यादा प्राइस मिल रही है, लेकिन प्रिंसिपल मार्केट तो इंडिया ही होगा ना. तो ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, डायमंड के रिलेटेड है. फिर यहाँ पे लिखे द मार्केट विल बी असेट बेस्ड ऑन नेट प्रोसीड फ्रॉम द सेल विच विल डिडक्ट एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद सेल इन मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट. तो इसका एक एग्जांपल सी इंस्टीट्यूट ने दिया, वो हम पढ़ते हैं पहले. ये आप एग्जांपल पढ़िए. An asset is sold into different active markets at different prices. An entity enters into transactions in both a markets and can access the price in those markets for the asset at the measurement date. The market A, market B. The price that would be received is 26. Market A में transaction cost in that market is ₹3 and the cost of transportation in the to transport the asset is ₹2. यानी कि transaction cost ₹3 है, transportation cost 2 है. यहाँ पे लिख देते हैं. और सेलिंग प्राइस 26 रुपया है. मार्केट ए में एक ही सिचुएशन लिखते हैं, सेलिंग प्राइस 26, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मैं टीसी लिखूंगा, टीआर यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टीआरसी ये टीसी. तो ये कितनी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? ये 3 और 2 है. तो इसको नेट कितना मिलेगा? 23 में से 2 गए तो 21. फिर बी में क्या होगा? 25 रुपये मिल रहे हैं बी मार्केट में, और उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रही है ₹1 और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ₹2. तो इसमें नेट कितने मिल रहे हैं? 25 में से 3 गए तो 22 रुपये मिल रहे हैं. फिर भी आप एक बार कैलकुलेटर कर सकते हो. द फेयर वैल्यू ऑफ असेट इफ मार्केट ए इज द प्रिंसिपल मार्केट. अगर ए है वो प्रिंसिपल मार्केट ही है, यहाँ पे इसका मतलब क्या, यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ वॉल्यूम है विथ हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ दिस प्रोडक्ट, से फॉर एग्जांपल सब्जी विथ हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज. तो भले ही इसमें 21 मिल रहे हैं और यहाँ पे 22 मिल रहे हैं, तो इसको गिनने का है. द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इफ नन ऑफ द मार्केट इज द प्रिंसिपल मार्केट. अब कोई भी प्रिंसिपल मार्केट नहीं, तो आपको मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट देखना होगा. तो उसका आंसर देखते हैं.
इफ मार्केट इज द प्रिंसिपल मार्केट for the asset market with greatest volume and level of high activity, the fair value of the asset would be measured using the price that would be the received in that market after taking into account ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. प्रिंसिपल मार्केट में आपको सिर्फ फेयर वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस करनी है, लेकिन कंपेयर करने के लिए आपको दोनों निकालना है. ठीक है, तो प्रिंसिपल मार्केट में आपको कितने मिल रहे हैं, 26 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पे ये, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस कर दी. तो अब आपने तय तो कर लिया ये प्रिंसिपल मार्केट है, लेकिन जब तय नहीं होगा ना तब ये सारे कैलकुलेशन का. अब इसको तो पता ही है कि ये प्रिंसिपल मार्केट है, तो उसमें तो सिर्फ 26 रुपया माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2, तो 24 ही उसका आंसर आएगा. इसकी ये फेयर वैल्यू होगी. प्रिंसिपल मार्केट में कभी भी आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस नहीं करनी होती. ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज नॉट लेस डिडक्टेड वाइल डिसाइडिंग फेयर वैल्यू इन प्रिंसिपल मार्केट. ठीक है, अब दूसरी बात आ गई, अगर दोनों में से कोई भी प्रिंसिपल मार्केट नहीं, तो पहले हम मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट डिसाइड करेंगे. दोनों में से 3 और 2 लेस करेंगे तो हमको मिलेगा मोस्ट एडवांटेजेस बी है. ठीक है, तो 22 रुपया की वजह से वो सिर्फ मार्केट डिसाइड करने के लिए हमने उसको बी को मोस्ट एडवांटेजेस बोला, लेकिन अभी उसकी फेयर वैल्यू नहीं निकाली. यहाँ पे 21 मिल रही है, यहाँ पे 22 मिल रही है, इसलिए ये मोस्ट एडवांटेजेस हो गया, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि प्रिंसिपल मार्केट कौन है, ना ए है ना बी है. तो हमने अभी मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट निकाला. अब फेयर वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फेयर वैल्यू निकालने के लिए तो हमको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही लेस करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस नहीं करना है. चाहे वो प्रिंसिपल मार्केट में तय करो या मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में से तय करो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है. तो यही सम सीए इंस्टीट्यूट ने भी रिसेंट एग्जाम में पूछा हुआ है. इसके कुछ अमाउंट से वो मैं आपको दिखाता हूँ. देखिए, ये नवंबर 18 का 5B क्वेश्चन है. यहाँ पे आप पढ़ सकते, सॉरी 4B है सजेस्टेड आंसर्स में. ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए. An asset is sold in 2 different active markets at different prices. An entity enters into transaction in both the market and can access the price in those market for the asset at the measurement date. In market date, the price would be received is 78, transaction cost 9 and transportation cost 6. हम लिखते रहते इसी एग्जाम्पल को. ए बी ही है मार्केट का नेम भी. सेलिंग प्राइस है 78, फिर आई आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और आई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. नौ और 6, तो आप लेस कीजिए. 9 और 6 15, 78 में से 15 गए तो 63. तो यहाँ पे 63 रुपये आपको मिल रहे हैं और यहाँ पे मिल रहे हैं 75 में से 9 हो जाते हैं. 75 और कितने हैं, 3 और 6, तो यहाँ पे 66 आएंगे. तो अगर ये ए प्रिंसिपल मार्केट है तो भले ही यहाँ पे 66 मिल रहे हैं, आपको फेयर वैल्यू तो यही गिननी है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक प्रिंसिपल मार्केट नहीं है. तो आपको सबसे पहले प्रिंसिपल मार्केट नहीं है तो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट तय करना पड़ेगा, फिर उसकी प्राइस को फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी. लेकिन फेयर वैल्यू निकालते समय आपको ये मोस्ट एडवांटेजेस मिल रहा है, लेकिन फेयर वैल्यू निकालते समय 66 नहीं लिखना है, उसमें तो सिर्फ आपको 75 में से 6 ही लेस करने. तो वो 75 में 69 है उसकी फेयर वैल्यू आएगी, अगर नन ऑफ देम इज़ प्रिंसिपल मार्केट एंड बी इज़ द मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट. क्योंकि आपको फेयर वैल्यू निकालते समय ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट कभी भी लेस नहीं करनी होती है, नहीं करनी होती है, नहीं करनी होती है. सिर्फ प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट जब तय नहीं हो पाता है कौन सा प्रिंसिपल मार्केट है, तब दो मार्केट में से कौन सा मार्केट मोस्ट एडवांटेज वो तय करने के लिए सिर्फ ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस करते हैं. तो आप आंसर पढ़ लीजिए 4B का. हाँ, अगर ये होता है तो इसमें से हाँ आपको 63 नहीं निकालने, 78 माइनस 6 तो इसकी 72 आएगी.
अगर ए इज़ द प्रिंसिपल मार्केट तो 78 माइनस है, और बी नाइदर ऑफ द प्रिंसिपल मार्केट, तो पहले हम 63 और 66 को कंपेयर करेंगे जिस तरह यहाँ पे भी किया, और बी को मोस्ट एडवांटेजेस मानेंगे, फिर बी में 75 में से 6 लेस करेंगे तो 69 आएगी। ये रही उसका आंसर। हाँ, प्रिंसिपल मार्केट में आपको सिर्फ इतना ही लेस करना है, 6 रुपया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस नहीं करनी है, ठीक है। यानी कि फेयर वैल्यू निकालते समय कोई भी, या तो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट या प्रिंसिपल मार्केट को आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस नहीं करनी है, सिर्फ तय करते समय प्रिंसिपल मार्केट कौन सा है, सॉरी मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट कौन सा है, वो तय करने के लिए आपको लेस करना होता है, ठीक है। फिर मार्केट पार्टिसिपेंट के बारे में भी हमने पढ़ा, वो आप एक बार पढ़ लीजिए। A fair value measurement is a market based measurement, not an entity specific measurement. Therefore, a fair value measurement uses the assumption that market participants would use when pricing the asset or liability. An entity shall measure the fair value of an asset or liability using the assumptions that market participant would use while pricing the asset or liability, assuming the market participant act in their इकोनॉमिक बेस्ट इंटरेस्ट, यानी कि उनके पास पूरी सूझबूझ है, वो बुद्धिशाली है, नॉलेजेबल है। हु आर द मार्केट पार्टिसिपेंट, व्हाट आर द मार्केट पार्टिसिपेंट, दे शुड बी इंडिपेंडेंट, दे शुड नॉट बी अंडर एनी स्ट्रेस और फोर्स, ऑल पार्टी शुड बी रीजनेबल एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेम। जो ही हमने पहले बात कर दी, जो एबल होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए, नॉलेजेबल होने चाहिए और विलिंग भी होने चाहिए, तो उसी को तो मार्केट पार्टिसिपेंट कहते हैं। तो वो ये भी एक बार आप पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ये क्या क्या एक मार्केट पार्टिसिपेंट कौन कौन से अजम्पशंस वो चेक करेगा। देखो, एक लैंड है जिसपे रिस्ट्रिक्शन है कि आप अगले क्या लिखा है, एंड लैंड इज अ लीगल रिस्ट्रिक्शन टू यूज इट फॉर कमर्शियल पर्पज इन नेक्स्ट 10 ईयर इरिस्पेक्टिव होल्डर्स। यानी ये असेट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन हो गए। सबसे पहली बात, कोई एक बंदे के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, धीरू भाई अंबानी भी आएगा, नरेंद्र मोदी भी आएगा, तो इस लैंड को अगले 10 साल तक कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता। अब एक बंदा, एक नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट इस असेट को खरीदते समय क्या क्या ध्यान रखेगा, वेदर द रिस्ट्रिक्शन इज कॉमनली इम्पोज ऑन ईच सच टाइप ऑफ लैंड, यानी कि इसके आसपास में जो भी लैंड है, हर एक लैंड पे ये रिस्ट्रिक्शन है। हाउ यूजफुल इट विल बी आफ्टर द एंड ऑफ द 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद इस लैंड का क्या इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। 10 ईयर्स के बाद क्या मैं इसमें कोई बड़ा बिल्डिंग बना सकता हूँ, कोई फ्लैट की स्कीम निकाल सकता हूँ, या तो फिर कुछ अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, ऐसे कोई प्रोबेबिलिटी है। Whether there is any alternative use which may be considered normally by a participant for similar kind of deals, how liquid the sale of land will be with such restrictions, comparing the price with similar kind of land without restriction to arrive at fair value। वो चेक करेगा कि इसी एरिया में इसी प्रकार की लैंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन कितने दाम में मिल रही है। तो ये सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स अजम्पशंस चेक करेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इससे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। फिर हमने ये देख लिया ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है, उसे कब लेस करना होता है, कब नहीं करना, तो उसके सम के साथ देख लिया है, तो उसको हम फॉरवर्ड करते हैं। एक बार फिर भी आप पढ़ लीजिए।
तो अब पढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन असेट और लाइबिलिटी बट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजेक्शन। असेट की वजह से ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लग रही है वो, लेकिन वो ट्रांजेक्शन आपको करना है उसकी वजह से लग रही है। अगर से फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट पे कोई असेट बेचना चाहते हो तो वो असेट की वजह से फ्लिपकार्ट को आपको कमीशन नहीं देना पड़ रहा, लेकिन आप बेचना चाहते हो इसलिए कमीशन देना पड़ रहा है। तो यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक किसका है, ट्रांजैक्शन का है, वो सेल नाम के ट्रांजैक्शन का वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। हैंस इट वुड नॉट अप्रोप्रिएट टू कंसिडर एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट फर्दर व्हाइल असेसिंग फेयर वैल्यूज फ्रॉम सच प्रिंसिपल मार्केट्स। फिर क्या बात हुई, ट्रांजेक्शन कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो अलग है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट दैट वुड बी इनकर टू ट्रांसपोर्ट द asset from its current location to its principal market. Unlike transaction costs which arise from a transaction and do not change the characteristics of the asset or liability, transport costs arise from the event, that is transport, that does change the characteristics of an asset, its location. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से आपकी पूरी असेट का कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गया। से फॉर एग्जांपल आपका मशीन पहले दुबई पड़ा था, अब अहमदाबाद में पड़ा है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक ही बदल गया ना। अब एसेट कहाँ पड़ी है तो वो भी एक मायने रखता है, क्योंकि आपको जहाँ यूज़ करनी होती है वहाँ आपको असेट चाहिए। इस तरह से तुम नहीं बता सकते। If a location is a characteristic of the asset, it might be the case, for example, for a commodity, the price in the principal or most advantageous market shall be adjusted for the cost, if any, that would be incurred to transport the asset from its current location to that market. अगर लोकेशन वो असेट का कैरेक्टरिस्टिक है तो उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। It would be considered if in case it is an inherent part of assets and liabilities so transacted, that is a commodity. अब यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल मार्केट में आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस करना है। मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में दोनों करना है, ठीक है। लेकिन इस वाले एग्जांपल में सी इंस्टीट्यूट ने दोनों, जब मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में भी फेयर वैल्यू तय किया तब उन्होंने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही लेस किया था, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द असेट नहीं था जो हमने पास्ट पेपर देखा। देखो ये नवंबर 18 का जो पेपर था उनमें हमने क्या देखा कि हमने तय करने के लिए तो दोनों लेस किया। ट्रांजेक्शन कॉस्ट तय कर मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट तय करने के लिए दोनों लेस किया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन जब उसकी फेयर वैल्यू निकालने आई तब हमने सिर्फ क्या लिखा है यहाँ पे, since the entity would maximize the net amount that would be received from the asset, that is 66, the fair value of the asset would be measured using the price in market B. वो तो मोस्ट एडवांटेजेस हो गया। अब फेयर वैल्यू कैसे निकाली, प्राइस लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उन्होंने ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस नहीं की, भले ही वो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट था। तो हो सकता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेट ना माना हो उन्होंने, सी इंस्टीट्यूट ने। An entity sells certain commodity which are available actively at location A. से फॉर एग्जांपल जूनागढ़ है, तो जूनागढ़ में जो आम होते हैं, केसर आम बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एंड विच इज कंसिडर्ड टू बी एट्स प्रिंसिपल मार्केट, बीइंग सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एंड एक्टिविटीज टेक प्लेस। जहाँ पे सारे आम जूनागढ़ में ही बिकते हैं और वहाँ पे ही उसके सारे ज़्यादातर ट्रांजेक्शन होंगे। हाउएवर fair value of commodity is required to be asset for location B which is far from location A। और आम खाने वाले लोग ज़्यादातर जूनागढ़ में नहीं, ज़्यादातर मुंबई और बड़ी बड़ी सिटीज़ में होते हैं, तो वो लोकेशन ए है। एंड रिक्वायर्स अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 100, सिंस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट and it is not specific to any transaction but it is inherent cost which requires to be incurred while bringing such commodity from location A to B, that is Junagadh to Mumbai, it will be considered while evaluating the fair value from the principal market। तो आपको प्रिंसिपल मार्केट में जब उसकी प्राइस डिसाइड करेंगे तो उसकी कॉस्ट इतनी ऐड कर देंगे, और अगर सेल हो रहा है तो आप इतनी लेस कर देंगे।